Hello everyone. Once again I'm here to teach you all, to entertain you all. How to entertain? With study. पढ़ा करके आपको entertain करेंगे. And I hope those viewers who are viewing, who are watching my channel, they might feel that they are happy while studying. I hope I have made accountancy easy. The kind of thinking that everybody was having कि accountancy is one of the very difficult subject. I feel all my viewers must have not developed such type of feeling. So once again I'm here with my channel Damayanti Commerce Tutorials. I welcome you all and I expect that you all will keep on sharing my videos and your lovely comments, valuable suggestions in the comment section. So keep on liking, keep on subscribing, keep on sharing. So let us start with the same chapter, that is accounting principles of class 11th. Now today we will discuss about the accounting concepts. In my previous video I have already shared that accounting principles are categorized into two parts, right? One was accounting concepts or assumptions and the other was accounting conventions. Okay, so now here I have written only accounting concepts and accounting conventions I will share in my next video. Okay, so let us start with the first accounting concept, that is going concern concept. This accounting concept I have divided in two parts. The one is as per the accounting standard first, which we need to study, and there are other accounting concepts also which are required to understand these three concepts. अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हमें ये तीन चीज़ें भी समझ नहीं आएंगी. ठीक है, सो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. हम ये नहीं कह सकते कि इसके बिना हम इसको पढ़ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो बिफोर स्टार्टिंग द अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट थ्री कंसेप्ट्स और assumptions of any business, right? The first is going concern. See, the term going concern, going का मतलब क्या होता है? जा रहा है. कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता है, तो क्या ऐवी बस चल दिया? नहीं. When we are talking about going concern in accounting principles, it means that whatever business we have started, that business will go for long term, that business will run for a long tenure. हम ये सोच के तो बिजनेस नहीं शुरू करते ना कि 5 साल में बंद कर देना है. मैंने ये सोच के थोड़ी ना यूट्यूब चैनल शुरू किया है कि बस ये सेशन पढ़ाया और चल दिया. नो, आई हैव अ वेरी लॉन्ग विजन, वेरी हायर थिंकिंग कि आपके थ्रू पूरे देश भर में मुझे फैलना है. ठीक है, जितना हो सके लोगों को पढ़ाना है, एजुकेट करना है. तो हाउ कैन आई डू? I must take the help of this social media as well as the benefit of platform of this YouTube. And you all are my brand ambassadors. All my viewers are my brand ambassadors. So going concern, किसी भी बिजनेस का पर्पस ये नहीं होता है कि हमने आज बिजनेस शुरू किया और कल बंद कर दिया. शटर आज ओपन हुआ, कल शटर डाउन हो गया. नो, this cannot be a purpose of any of the businessman, right? So what we have to, we assume that our business will run for a long time period. Okay, next is accrual concept, उधारी का concept. बहुत आसान तरीके में आपको बता रही हूँ कि उधारी का concept. ठीक है, बिजनेस वो नहीं होता जिसको हमने, जैसे मेरे पास ये स्टिक है और मैंने इसको 300 रुपये में बेचना है, राइट? और मेरे पास लाखों स्टिक्स हैं ऐसी, मेरे पास मेरा बिजनेस ही इसी स्टिक को बेचने का है. तो मैंने 300 में बेचती गई. क्या मैं सबसे पैसे ले रही हूँ? हाँ, ले तो रही हूँ, लेकिन इमीडिएट एम आई रिसीविंग कैश? नो. देयर माइट बी सम बायर्स, सम कस्टमर्स, दोज हु विल बी सेइंग मैं आपको दे जाऊँगा. कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनको हम कहते होंगे नहीं भाई साहब आप ले जाओ, पैसे तो आ ही जाएंगे, पैसों की क्या टेंशन है, राइट? You all might have experienced this kind of behavior from the shopkeeper towards you. Okay, so this is what accrual concept. पैसा आपको उस साल का मिला हो या ना मिला हो, आप मान के चलोगे उसी साल की इनकम. जैसे मैंने आपको एक दिन पॉकेट मनी का एग्जाम्पल दिया था, तो मान लो कि अगर आपको अगस्त मंथ की पॉकेट मनी नहीं मिलती है,
आपको जुलाई में मिली होती है, फिर अगस्त में नहीं मिलती है, एंड देन यू आर गेटिंग द पॉकेट मनी इन द मंथ ऑफ सितंबर. विल यू एग्री विद दिस कि ये जो पॉकेट मनी है वो सितंबर की या अगस्त की गुल हो गई? नहीं ना. यू ऑल विल कीप ऑन आर्ग्यूइंग विद योर पेरेंट्स, ये तो अगस्त मंथ की है, सितंबर की कहाँ है, राइट? एंड वील डू, दैट इज आवर ह्यूमन नेचर. ओके, so this is what accrual concept, whether we have received cash or not, if we have sold or bought goods for that particular accounting time period, then it will be recorded in that particular year's information. Consistency concept, consistency, आप लोग कुकिंग शोज अगर देखते होंगे तो उसमें लिखा हो, बोलते हैं लोग कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, जितने भी लिक्विड वाली चीज़ें वो लोग बनाते हैं, राइट? तो दैट इज़ व्हाट, एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए. कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए. जैसे अब इसीलिए आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाया जा रहा है कि जितने भी बिजनेसमैन होंगे सब जब एक तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, देन ओनली कंपैरिजन कैन बी डन. एक डांसर का एक स्पीकर से कंपैरिजन नहीं हो सकता, और एक स्पीकर का एक सिंगर से कंपैरिजन नहीं हो सकता, राइट? अगर अभी आप कॉमर्स पढ़ रहे हो और फिर आके आपने कॉमर्स की जगह साइंस पढ़ लिया कि नहीं नहीं, तो कॉमर्स मुझे जच नहीं रहा, मेरे को सूट नहीं कर रहा, तो लेट मी चेंज माई स्ट्रीम. हाउ कुड यू कंपेयर दैट? वेयर इज योर कैपेबिलिटी? विच सब्जेक्ट यू हैव डन बेटर? नो, यू कैनॉट कंपेयर बिकॉज यू हैव नॉट गिवन अ प्रॉपर टाइम. किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए हमें 2 साल का टाइम चाहिए होता है, इसीलिए 11th और 12th 2 साल कॉमर्स होता है, राइट? सो दिस इज व्हाट कंसिस्टेंसी. अब हम यहाँ से थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं. बिजनेस एंटिटी, एंटिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड आइडेंटिटी. जैसे हमारी आपकी आइडेंटिटी है, हमारा आपका नाम है, वैसे ही दुनिया के हर बिजनेस का अपना एक नाम होता है. जैसे कि मेरे चैनल का भी एक नाम है, भूलना नहीं. क्या है? दमयंती कॉमर्स ट्यूटोरियल्स. नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट. दिस टर्म वी आर स्टडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग. दोज ट्रांजेक्शन्स कैन बी रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. तो हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी मेजरमेंट वाले होंगे. Feelings cannot be recorded into books of accounts. When we are talking about accounting period, see there are 2 types of accounting period. One which consists of 12 months, right? वो accounting period जिसमें 12 months होते हैं. It might be calendar year, it might be financial year. तो calendar year everybody knows from January to December. Now what is financial year? I must tell you, this financial year starts from April and ends to next year's March month. It is also of 12 months tenure, but this is called financial year. ठीक है? Cost concept आपको फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था. हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, दिस वॉज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. क्यों? क्योंकि हम जिस प्राइस पे, अगर ये मेरा बोर्ड है, मैंने इसको जितने रुपए में खरीदा था, आज की डेट में ये उतने रुपए का नहीं मिलता, उससे कम रेट में मिलता है, ठीक है? लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं क्या बोलूँगी? क्या प्रेजेंट रेट बोलूँगी या जिस रेट पे मैंने खरीदा वो रेट बोलूँगी? ऑफ कोर्स आई विल टेल यू द रेट विच आई हैव पेड. So that is why accounting also deals with the historical cost concept, not with the present cost concept. Dual aspect, you can see here I have written capital plus liabilities is equal to assets. इस पूरे concept पर based हमारा एक chapter है that is called double entry system. ठीक है? तो ये पूरा कंसेप्ट मैं डिटेल में आपको उस समय पढ़ाऊंगी. यहाँ अभी आपको सिर्फ इतना बता दे रही हूँ कि एवरी डेबिट हैज़ इट्स करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. एवरी डेबिट हैज़ इट्स करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. जो भी डेबिट होता है उसके साथ उसका इक्वल क्रेडिट होना कंपलसरी है. रेवेन्यू कंसेप्ट, आपको पहले भी मैंने रेवेन्यू का मतलब बताया था. रेवेन्यू क्या होता है? जब हम गुड्स को बेचते हैं और जो इनकम जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू.
अब जब हम यहाँ रेवेन्यू कंसेप्ट की बात करते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हाउ मच अमाउंट वी हैव जनरेटेड बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज in the given time period, whether it is financial year or it is an accounting period. Okay, what we have to do, we have to check. देखो, इंस्टॉलमेंट पे किसी चीज को बेचना भी हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, क्योंकि हर साल उसका कुछ कुछ अमाउंट हमारे पास आ रहा है. मैचिंग कंसेप्ट, फिर एक बार मैं आपको ये दो चीजें बताऊंगी. क्या? एक फाइनेंशियल ईयर और दूसरा अकाउंटिंग पीरियड. हर साल हमें ये देखना होता है कि क्या जितने भी हमने रेवेन्यू रियलाइज कराए हैं वही वो एक्सपेंसेस हैं जिनके थ्रू हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कराया है. नहीं समझ में आया? देखो, जैसे ये स्टिक है, मेरा स्टिक बेचने का बिजनेस है, ठीक है. तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये स्टिक जो मैं बेच रही हूँ, क्या इस स्टिक्स में मेरे जितने एक्सपेंसेस आए हैं इसको मैन्युफैक्चर करने में या इसको खरीदने में या इसको बेचने में. देखो, बेचने में भी पैसा लगता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ता है ना, आपको जीएसटी पे करनी पड़ती है. तो याद रखिएगा, जीएसटी कैन नॉट बी ए कॉस्ट. जीएसटी आपकी एडजस्ट हो जाती है. और एक बार फिर कहूँगी, जीएसटी पर भी बेस्ड हमारा पूरा एक चैप्टर है और मेरे पास और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. आई विल शेयर ऑन दैट टाइम. सो कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल दमयंती कॉमर्स ट्यूटोरियल्स. मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि आप उन एक्सपेंसेस को उन रेवेन्यूज से मैच कराइए जिसको आपने जनरेट किया है. यानी अगर मुझे ये स्टिक बेचनी है तो बेचने के लिए मैंने कौन कौन से खर्च किए होंगे, ट्रांसपोर्टेशन दिया होगा, पैकिंग चार्जेस दिए होंगे, तो वो मुझे इससे मैच कराना होगा. बचपन में पढ़ा है ना, मैच द कॉलम. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट. ये सब हम बचपन की छोटी छोटी वर्कशीट्स आपको याद होंगी. अभी भी आपको मैच द कॉलम मिलेगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है. Objectivity concept, of course whatever books of accounts we are preparing, that has to be free from bias, ठीक है. पर्सनल जजमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होना